let's start. Should we wait some? Anybody else wants to share or something? I hope nobody got confused because of that other link I sent. Okay, so let's do our peak state programming. Oh, actually, this let's just do the peak state programming with Tony Robbins. I think those audio files just deleted from my account, from my phone. Can you all hear this music? Yes. Okay. Okay. Okay, let's do our peak state programming. Yes, I am the winner. Yes, we all are the winners in the game of life. Okay, let's now do on our left leg. Left leg in the front, right leg behind, ankle raised. And let's start. Run, 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 everyone run. You are the winner. You are the winner. Run, 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 fast, fast, fast. You are the winner. Yes. Yes, I am the winner. We all are the winners. We are open and receptive to all good in our life. Okay, so let's start our book. Who wants to read today? Binita ji, your problem solved? Yesterday you couldn't listen to the sound. Yes. Okay, okay. I don't know why the sound was not coming. Yeah, maybe sometimes it happens with either the phone or maybe the network was bad or something. Would you like to About read? 2-3 times. And then I came 2-3 times back. And then also Oh, sound was not coming. and it still was not coming? No. Oh, Later on it came. After 10 minutes, I think. okay. Mhm. Okay, let me just open the book here. Would you like to read today? Yes, yes, I can. Okay, perfect. Thank you so much. Can you all see the book?
all we see can. the book? Yeah, okay. Yes, Yes. yes. Yeah, so let's describe this picture. What do you all see in this picture? There is some bottles Mm-hmm. and magical sparkles are coming out of it. Small and big bottles, all different size of bottles are there. Yes, yes. So it is like the elixirs are there, you know, in the in the ancient era, they gave the medicine like this in this kind of bottles. So it's like an Okay. elixir. And so today's chapter is about health again, and it is a magical elixir, and that is what is gratitude is our magical elixir. So with gratitude, we can heal any kind of disease. So that is the magical power of gratitude. Just like Arwa shared in our group, like how she healed her ear infection. So, okay, so let's start reading. Miracles are not contrary to the nature, but only contrary to what we know about nature. Saint Augustine, theologian and Catholic bishop. We should feel healthy, energized, and full of happiness most of the time because that is how it feels to have our birthright of full health. The reality, however, is that a lot of people don't feel this was very often, if ever. Many people are dealing with illness problems with the functioning of their body or suffering from bouts of depression and other mental health problems, which are all states of Less than full hand. less than full health. Yes, so यहाँ पे उन्होंने क्या बोला है, एक तो ये बात जो आगे इन्होंने बोली कि miracles are not contrary to nature but only contrary to what we know about nature. हमें एक्चुअली पता नहीं है कि मिरेकल्स कैसे होते हैं. नेचर में तो मिरेकल्स हमेशा होते ही रहते हैं. हमने कितनी बार सुना होगा, कितनी बार रिलीजियंस में भी बात होती है कि ये मिरेकल हो गया, ये मिरेकल हो गया. एक्चुअली में मिरेकल होते हैं, नेचर में तो हमेशा होते हैं. इट्स हमें कितना पता है उसके बारे में, हम कितना बिलीव करते हैं, हमें कितना फेथ है, इसके ऊपर डिपेंड करता है. तो ये जो सेंट ऑगस्टीन ने ये बात कही थी, जो कैथोलिक बिशप थे, थियोलॉजियन कैथोलिक बिशप, उन्होंने ये बात कही थी. एंड वी शुड फील हेल्दी, एनर्जाइज एंड फुल ऑफ हैप्पीनेस. तो जब हम पैदा होते हैं तब हम कैसे होते हैं? फुल ऑफ एनर्जी होते हैं, 50 बार गिरते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इतनी एनर्जी भरी होती है. जब मैं अपनी बहन की बेटी को भी देखती हूँ, छोटी सी है, ओ माय गॉड, क्या एनर्जी होती है उसके अंदर, इतनी ज्यादा एनर्जी. तो हमारा एक्चुअली ये सब बिलीफ सिस्टम हमारे बन गए कि हम ये 40 के बाद ये होता है हेल्थ के साथ, या 50 के बाद तो हेल्थ खत्म हो जाती है, 60 के बाद तो भी कितने सारे डिजीज होने लगती है. तो ये पूरे मिथ्स है एक्चुअली. बिलीफ सिस्टम हमारे समाज ने ही अपने ऊपर थोप दी है, ये कोई सच नहीं है एक्चुअली. इन रियलिटी तो हमें एक बच्चों के पास जो एनर्जी होती है, उनके पास जो हेल्थ होता है, आपने देखा होगा कि छोटे बच्चों को ज्यादा बीमारियां भी नहीं होती है जल्दी, उनको ये सब भी नहीं होता है जो हमें जल्दी हो जाता है. जैसे अगर न्यूबॉर्न बेबी है तो उसको भले वो लोग बोलते हैं कि हाँ इससे इन्फेक्शन से दूर रखो, पर आपने कभी सुना है कि न्यूबॉर्न बेबी को तुरंत ही उसको कुछ ऐसा इन्फेक्शन लग गया जो किसी और को, मतलब एकदम बहुत कम सुना होगा, रेयरली. क्योंकि जो भी मतलब हम जब पैदा होते हैं तो हमारी एनर्जी, हमारी इम्यूनिटी, सब कुछ बराबर ही होती है. ये जैसे 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 हमारे माँ बाप कुछ बोलते हैं, समाज कुछ बोलता है, कुछ ना कुछ होके हमें धीरे 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 हमारी बिलीफ सिस्टम बन जाती है कि हाँ ये तो 60 के बाद, कोई कोई लोग बोलते हैं कि 40 के बाद तो आंखें कमजोर होने लगती है,
नीज कमजोर हो जाते हैं, ये सब पूरी बिलीफ है, ये कोई सच नहीं है, ये हम मान के बैठ गए एक्चुअली। इन रियलिटी तो हमारी हेल्थ पूरी अच्छी होनी चाहिए, हमारा बर्थ राइट है टू हैव अ फुल हेल्थ, जो हमें पूरा दिन एनर्जेटिक फील होना चाहिए। कभी रात तक भी हम अगर ऐसा टायर्डनेस फील करते हैं या कुछ थोड़ा थोड़ा काम करके भी टायर्ड हो जाते हैं, तो वो हमारी एक्चुअल हेल्थ है ही नहीं, जो हमारा बर्थ राइट है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। इलनेस इसको तो दूर की बात है, पहले तो हमारा बॉडी में एक अच्छी फीलिंग होनी चाहिए, एनर्जी होनी चाहिए, हमें हमेशा यूथफुलनेस लगनी चाहिए। अभी तो क्या होता है कि बॉडी में तो इलनेसेस है ही, मेंटल डिसऑर्डर्स भी कितने हो गए, कितने सारे लोग दुनिया में डिप्रेशन से के शिकार होते हैं आजकल। तो ये सब बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ग्रेटिट्यूड एक्चुअली। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Vinita ji, you're on mute. Sorry. You're fine. Gratitude is one of the fastest ways I know to magically begin experiencing the full state of health you are meant to have in your body and mind. All the miracles of healing we see happens as simply the result of full health being restored instantly in the human body, when before there was less than full and perfect health. If you don't think gratitude creates miracles in your health and body, then read some of the thousands of miracle stories on the Secret website. हाँ, तो ये जो एक मिरेकल मैन की भी किसी ने स्टोरी पता है वहां पे अपने शेयर की थी, अपने ग्रुप में भी शेयर की थी। तो ये आप अगर theSecret.tv पे जाके आप स्टोरीज पढ़ोगे तो मिलियन थाउजेंड्स ऑफ वहां पे स्टोरीज लिखी हैं। कितने लोगों ने अपने हेल्थ में इतने बड़े मिरेकल्स किए हैं कि कोई इसकी कोई गिनती नहीं है। और मैंने खुद, मैं बीच में बहुत मैंने रिसर्च किया था ये सब चीजों का, तब मुझे पता चला कि वाओ, यू कैन क्योर एनी इलनेस विथ योर ओन माइंड। You don't have to go to any, healer or doctor. You can do it with your own mind. When you use your spirituality, when you use your subconscious mind, you can heal anything and everything. तो जैसे ये ग्रेटिट्यूड भी एक उसी तरह की प्रैक्टिस है। जब भी हम ग्रेटिट्यूड करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम बॉडी को एक ऐसे इंस्ट्रक्शन, पॉजिटिव इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं, उसके बारे में हम अच्छा फील कर रहे हैं। जैसे ही हम हमारे बॉडी के बारे में अच्छा फील करने लगते हैं, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन वी अट्रैक्ट फुल हेल्थ। सो ये भी आपको अगर जानना है तो आप ये इसके वेबसाइट पे जाके पढ़ सकते हो स्टोरी। और मिरेकल मैन की स्टोरी अगर होगी तो मैं वापस शेयर करूंगी। मेरा पता नहीं, फोन में से सब थोड़ी चीजें चली गई है, आज मुझे मैजिक बुक भी नहीं मिल रही थी तो मैंने वापस डाउनलोड की। कुछ डिलीट करते करते पता नहीं क्या डिलीट हो गया। एनीवेज, सो लेट्स रीड फर्दर। Gratitude's magical power increases the natural flow of health to the mind and body and can assist the body in healing more quickly, as countless studies have shown. The magical power of gratitude also works hand in hand with good bodily care, nutrition, and any medical assistance you might have chosen to follow. Where there is some kind of sickness or condition in your body, it is understandable that you may have negative feelings about it, like worry, frustration, or fear. But having negative feelings about sickness does not restore health. In fact, it has the opposite effect. It reduces health even more. To increase your health, you need to replace the negative feeling with good feelings, and gratitude is the easiest way to do it. हाँ, तो ये यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि आप अगर मान लो आपको कोई है, कुछ ऐसी नेगेटिव कंडीशन है आपके बॉडी में, कुछ भी सिकनेस है, तो उससे क्या होता है कि नेगेटिव फीलिंग्स तो आ ही जाती है, वो नेचुरली आ जाती है, राइट। तो यहाँ पे यानी फ्रस्ट्रेशन है, वरी है, फियर है, ये सब फीलिंग अपने आप आने लगती है। पर नेगेटिव फीलिंग्स, हैविंग नेगेटिव फीलिंग्स अबाउट योर हेल्थ will never ever restore your health.
वो कभी आपको वापस अपनी हेल्थ नहीं ला सकती है। अगर आप अच्छा फील नहीं करते हो अपने बॉडी के बारे में, कभी आप सिकनेस में से बाहर जल्दी नहीं आ पाओगे। जितना आप नेगेटिव फील करोगे उतना अंदर 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 आप चलते जाओगे। इसीलिए कभी कभी डॉक्टर के पास जाना भी क्यों हमको अच्छा फील करवाता है। कभी कभी डॉक्टर कुछ दवा नहीं भी देते तो साइकोलॉजिकल होता है कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। एक साइकोलॉजिकल फेथ होता है हमारा। कभी आप ये नोट करना कि आप डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कुछ ऐसा कुछ किया भी नहीं, ऐसी कोई खाली वही सेम दवाई लिख के दे दी, तो भी आप आके अच्छे हो गए, ठीक हो गए। क्यों? क्योंकि ये भी एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट ही है। अगर आपको वो उन्होंने प्लेसिबो भी दिया होता तो भी आप ठीक हो गए होते, अगर आपको दवाई नहीं भी दी होती। क्योंकि ये मेंटली होता है आपको बिकॉज आपको डॉक्टर के ऊपर ऊपर फेथ होता है। जैसे ये मेरी बहन का जो उन्होंने यहाँ पे शेयर किया था, तो उसको बस ऐसा ही था कि मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी तो मैं ठीक होंगी। तो 2 बार वो डॉक्टर के पास गई। ऑलमाइटी उनको यही सिखाना चाहते थे कि कुछ ना कुछ सबक सिखाना चाहते थे। उसकी टेस्ट थी उस टाइम पे। जैसे ही उसने बुक ली, बुक के अंदर जैसे ही पढ़ना चालू किया, ये 4th चैप्टर जो हेल्थ का हमारा चैप्टर था, वैसे वैसे उसको जो भी नेगेटिव फीलिंग्स थी वो रिलीज होने लगी इन द फॉर्म ऑफ इमोशंस, इमोशनल बर्स्ट। तो जैसे उसको बहुत रोना आया, ये वो, उसने बहुत ग्रेटिट्यूड किया अपनी बॉडी के बारे में। उसको एहसास भी हुआ कि हमेशा कितनी छोटी छोटी चीज में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी हमें आ जाती है। वो ऑटो पायलट पे होती है, कभी कभी हमें पता भी नहीं होता कि मैं अपनी बॉडी के लिए कितना खराब सोच लेती हूँ। कुछ भी है, अगर ये तो मुझे तो रिंकल्स हो गए, या फिर ये देखो ना ये क्या हो गया मुझे, लाइक मुझे तो डार्क सर्कल्स हो गए हैं, या ऐसी कितनी सारी चीजें होती है जो ऑटो पायलट पे, बिकॉज ऑफ आवर हैबिट्स वी ऑलरेडी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट दोज थिंग्स। तो अभी एक आपको, बुढ़ापा आ गया, घुटने में दर्द तो होगा ही। हाँ सॉरी, बुढ़ापा आ गया, घुटने में दर्द तो होगा ही। आफ्टर 40 हम लोग अपने आप को समझने लगते हैं। एग्जैक्टली ये जो एक बिलीफ ही है, ऐसा कुछ नहीं होता है। हम्म। मैंने ऐसे कितने लोगों की स्टोरीज पढ़ी है जो 90 में 80 में वो बॉडी बिल्डर बनते हैं। अभी किसी की स्टोरी आई थी, वो जो लेडी थी, आई थिंक यूट्यूब पे था, पता नहीं कहाँ पे, फेसबुक पे या यूट्यूब पे। तो ऐसी कभी कभी इंस्पिरेशनल स्टोरीज में देखती हूँ कि हाँ अच्छा बता तो क्या ये यानी क्या बोल रहे हैं। तो उसमें मैंने देखा वो लेडी, शी वॉज अबाउट 90 years ओल्ड, एंड उसने ये बॉडी बिल्डिंग का काम किया था स्टार्ट 70 की एज में। कैन यू बिलीव इट? विद इन 10-15 years और 20 years उसने अपनी बॉडी इतना जबरदस्त बना लिया। वो कोई शो पे आई थी, एक्चुअली ये स्टीवी हार्वे के शो पे आई थी। तो आई मीन आई वाज सो अमेज्ड लुकिंग एट हर बॉडी। तो और ये आप एक जापान के ओकिनावा स्टेट करके है जापान, जापान में, वहां पे लोग, आप उनकी एक ये इकिगाई बुक में भी दिया हुआ है। तो वहां के लोग 90 में 100 तो वहां कॉमन है एज। और 90 और 100 की एज तक भी वो लोग इतने ही तंदुरुस्त होते हैं, इतने हेल्दी होते हैं। और उनका एक मंत्रा है कि लाइफ लॉन्ग वो काम करते हैं, वहां पे रिटायरमेंट का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। बिकॉज जो काम भी करते हैं वो अपना जो ब्लिस हो जिसमें फील करते हैं वो वाले काम करते हैं पहले से ही। ऐसी चीज में जाते हैं कि हाँ भले वो कैसा छोटा या बड़ा काम नहीं है, पर काम उनको अंदर से अच्छा फील होना चाहिए। अपनी जो हम जिसके लिए बने हैं वो काम अगर हम करते हैं तो हम 90-100 तक भी वो काम कर सकते हैं। उसका कोई, उससे हमारी एज के साथ हमारी हेल्थ का कोई नाता नहीं है, एक्चुअली कोई लेना देना ही नहीं है। ये हमारी खुद की बिलीफ है जो हमें हमें हमेशा ये एहसास दिलाती है कि ये 40 के बाद ये हो गया, 50 के बाद ये हो गया। पता नहीं किसी लोग ने तो, अभी मुझे बीच में किसी के साथ बात हुई थी तो बोले ऐसा बिलीफ था कि नहीं 30 के 40 के बीच में तो ऐसे मूड्स वाले मूड क्या बोलते, मूड डिसऑर्डर्स होते, लाइक स्विंग्स। हाँ। अप मूड स्विंग्स होते, स्विंग्स मूड होते हैं। स्विंग्स होते, हाँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आपकी बिलीफ है।
और आपकी अगर बिलीफ होगी तो पक्का वो होगा भी कि मूड स्विंग्स आएंगे 30-40 की एज में। पर एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। आप इतने सारे लोगों की ऐसी देख सकते हो स्टोरीज कि जिसमें वो लोग इतना अच्छी हेल्थ के साथ पूरी लाइफ जीते हैं। थोड़ा सा अच्छे से न्यूट्रिशन का ध्यान रख लो, एक्सरसाइज थोड़ी बहुत कर लो, और सबसे ज्यादा तो आप अपनी बॉडी को क्या इंस्ट्रक्शन देते हो, बिलीफ सिस्टम के थ्रू आप क्या बोलते हो, या अपने थॉट्स में रोज अपना क्या आप बोलते हो अपनी बॉडी को, बहुत मायने करता है। तो ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस से क्या होगा, आप अपने धीरे धीरे जब आप कंसंट्रेटेड प्रैक्टिस करते हो अपनी बॉडी के लिए, आपकी बॉडी को एहसास होने लगता है कि हाँ ये तो, यानी अच्छा हमेशा ही पॉजिटिव बोलती है अपनी बॉडी के बारे में, तो वो भी वो इंस्ट्रक्शन उसी हिसाब से लेता है। मैं सीरियसली आपको बोल रही हूँ कि खाने पीने में मैंने इतना कोई स्पेशल अभी डिफरेंस नहीं कोर्स किया है, जो मैं जैसे खाती हूँ वैसे ही खाती हूँ। पर अभी 8, 9 या 10 महीने से जब से मैंने ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस चालू की है, मेरी एनर्जी लेवल्स इतनी हाई होती है। मैं वहां पे काम करती हूँ, 8-10 घंटे हो जाते हैं कभी कभी, क्योंकि ओवर टाइम में भी कभी, जैसे आज हम लोग शॉर्ट थे हमारे उस फार्मेसी में, सेकंड शिफ्ट में कोई बंदा एक बंदा था, फर्स्ट शिफ्ट में भी एक कम था बंदा। और हमारी जॉब ऐसी नहीं है कि बैठ के काम करना है, पूरा दिन हमारी जॉब में मतलब अच्छा है, एक तरह की एक्सरसाइज हो जाती है। तो पहले मेरे जब अंदर नेगेटिविटी थी, तब मैं थोड़ा करके मैं थक जाती थी। अब ऐसा कुछ कोई थॉट ही नहीं आता है कि इतना करूंगी तो थक जाऊंगी, ये वो कुछ नहीं। आराम से काम करती हूँ। उसके घर के आने के बाद भी कहीं ना कहीं पे हम लोग जाते हैं, वहां पे भी अगर मुझे वॉक करना है, कुछ भी हाइकिंग करनी है, सबके लिए मैं रेडी रहती हूँ। क्यों? ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ ग्रेटिट्यूड। आप भी ये करके देखो, बहुत 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 फायदा होता है। ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about the physical. Roll up the page. क्या हुआ? पेज ऊपर करना है। हाँ, अच्छा अच्छा, एक्चुअली ओके, अभी दिखा आपको? हाँ. ओके। Many people also have critical thoughts and feelings of dissatisfaction about their physical appearance. Unfortunately, those thoughts and feelings also reduce the magical flow of health. When there's something you don't like about your body, you are not being grateful for your body. Think about it. By the law of attraction, complaints about your body bring more problems to complain about. And so, complaining about your body or appearance puts your very health at risk। तो ये एक roll. समझने की जरूरत है यहाँ पे कि आप जब आप अपने बॉडी को लेके क्रिटिकल थॉट्स होते हैं, मैं ये पतली हूँ, मोटी हूँ, मैं ये हूँ, मैं मेरी हाइट कम है, ये कोई भी, आप इतना समझ लीजिए कि अगर भगवान ने, खुदा ने, सुप्रीम पावर ने आपको कुछ भी अगर जैसा भी बनाया है, तो उन्होंने कुछ ना कुछ वहां पे थॉट डाल के ही बनाया है आपको, कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बनाया है। अगर आपकी आंखें छोटी है, अगर आपका नाक ऐसा है, या अगर आपके जो भी है, अगर वो ऐसा है, तो उसके पीछे भगवान ने या सुप्रीम पावर ने कुछ ना कुछ अच्छा थॉट्स देके ही आपको बनाया है। तो जैसे भी है, आप अपना अपने आप को एक्सेप्ट करें। इसीलिए मिरर वर्क आपको बहुत काम आएगा उस टाइम पे। जब हम मिरर वर्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, मैं अपनी बॉडी के लिए कितनी क्रिटिकल हूँ। जब भी, या तो मेरे दांत अच्छे नहीं है, मेरी मेरी आंखें ये है, मेरा नाक ऐसा है, मेरी बॉडी ऐसी है, कुछ ना कुछ कितने क्रिटिकल थॉट्स चलते हैं आपको पता नहीं चलता। कई लोगों का तो ऐसा होता है कि मिरर के सामने जाते ही अपने क्रिटिकल थॉट्स चालू हो जाते हैं कि हाँ ये तो तू ऐसी लग रही है, तू वैसी लग रही, दोस काइंड ऑफ थॉट्स।
तो यहाँ पे समझना बहुत जरूरी है कि क्रिटिकल थॉट्स अबाउट योर बॉडी will bring more and more those kind of situation in your life. क्योंकि जितनी आप कंप्लेन करोगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपको ऐसे ही टाइप का, आपका बॉडी का अपीयरेंस जो कंप्लेन करने लायक होगा वो आपको लाके रखेगा, और आपकी हेल्थ भी रिस्क पे रहेगी हमेशा। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे बॉडी में। इसीलिए यहाँ पे ये जो हमेशा बोलते हैं, whoever does not have gratitude for their health and their body, even what he or she has will be taken from him or her. तो जिनको भी अपने बॉडी और हेल्थ के बारे में ग्रेटिट्यूड नहीं है, उनके पास जो भी है वो भी उनसे छीन लिया जाएगा। And whoever has gratitude for their health and their body will be given more, and he or she will have an abundance of health to their body. तो abundance of health अगर आपको लाना है तो आपको ये करना ही पड़ेगा अपनी हेल्थ के लिए। जैसे हम हमेशा ही अपने मेडिटेशन में अपने पूरे बॉडी पार्ट्स को ब्लेस करते हैं, एक्चुअली पता है क्या है, अपने जो ये हैंड्स होते हैं, हैंड्स के साथ हम जैसे टच करते हैं अपने बॉडी पार्ट्स को, हमारे हैंड्स भी एक्चुअली एक हीलिंग हैंड्स होते हैं। अगर हम ऐसा सोचे कि हाँ मेरे हैंड्स हीलिंग हैंड्स है, तो आप अपने आप को तो नहीं, किसी और को भी आप हील कर सकते हो। इतनी शक्ति है हमारे अंदर, हमें बस हमारी ये शक्ति को अनलीश करना है और कुछ नहीं। सो विनीता जी, यू कैन स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम हियर। यस, थोड़ा सा ऊपर चला गया। You may be sick or unwell. You may be sick or unwell now, or even in a lot of pain. But if you are reading these words, you are continuing to receive the gift of health. It can be very difficult to assess feelings of gratitude when sick or in pain, but even the smallest bit of gratitude helps increase the magical flow of health to the body. Today's practice, Magic and Miracles in Health, is designed to dramatically increase your health and happiness. And we are going to take a triple pronged approach to accelerate the results. तो यहाँ पे ट्रिपल प्रोंग्ड अप्रोच लिया है कि थोड़ा सा भी अगर आप ग्रेटिट्यूड करते हो तो भी आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। आपकी अभी जो भी कंडीशन है, सिकनेस है, पेन है, जो भी है, जिनको होता है, तो मुझे भी पता है कि हाँ उनके लिए ये सोचना बहुत ही आसान नहीं होगा कि ग्रेटिट्यूड करना अपनी हेल्थ के बारे में। पर ये ट्रिपल प्रोंग्ड जो अप्रोच है आपको ये करने में बहुत हेल्प करेगा कि कैसे आपको ग्रेटिट्यूड करना है। तो लेट्स रीड फर्दर। सो स्टेप 1। Step 1. Think about the great health you have received throughout your childhood, adolescence, and adult life. Think about the times when you felt full of energy and you were happy. Recollect 3 separate times in your mind when you felt on the top of the world. Say the magic words thank you and feel sincere gratitude of those times. If you think back to the big moments in your life, you will be able to recollect 3 separate times very easily. हाँ, तो ये स्टेप 1 में आपको क्या करना है, आपको पास्ट में जाना है और वहां से 3 ऐसे इंसिडेंट्स को ढूंढना है जहां पे आप अपनी हेल्थ के बारे में द टॉप ऑफ द वर्ल्ड फील कर रहे थे, यानी एकदम टॉच के ऊपर थे आप जब अपनी हेल्थ को लेके। जब आप में इतनी सारी एनर्जी थी कि आप कहीं पे भी कोई भी माउंटेन चढ़ सकते थे, कितनी भी सीढ़ियां कभी चढ़नी। मुझे अभी याद आ रहा है कि मैं अपनी कॉलेज में थी और हम लोग जैसे विद्यानगर में मैं पढ़ती थी फार्मेसी कॉलेज में, तो मेरी मेरी एक दो फ्रेंड ने, उन्होंने कुछ मन्नत ली थी कि चल के जाएंगे। तो पता नहीं कितने माइल्स थे, तो हम लोग चल के पूरे गए थे। 2-3 घंटे लगे थे चल के जाने में, 3 या 4 घंटे। तो यानी ऑफ कोर्स अगर इतना हम कभी भी जाते हैं, या मैं पावागढ़ का मुझे याद है कि मैं बहुत सारे स्टेप्स चढ़ी थी उस टाइम पे। तो आप भी ऐसे कोई रिकलेक्ट करो अपने टाइम्स कि जहाँ पे आपकी हेल्थ इतनी अच्छी थी कि आप कुछ भी कर सकते थे उस टाइम पे। ऐसे 3 इंसिडेंट ले लो जहाँ पे आपकी हेल्थ बहुत अच्छी थी और उस टाइम के लिए आज आपको ग्रेटिट्यूड करना है, सिंसियर ग्रेटिट्यूड कि वाओ गॉड, मेरी हेल्थ कितनी अच्छी थी उस टाइम पे कि मैं ये कर सकती थी, मैं वो कर सकती थी।
कुछ भी अच्छे वाले 3 लेके, इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है क्यों ये आप प्रैक्टिस करते हो। क्योंकि पास्ट में जाके आप जब ये अच्छे वाले मोमेंट्स को रिकलेक्ट करते हो, जैसे मैं अभी सोच रही थी और मुझे ये 2 मोमेंट्स याद आए कि हमें बहुत मजा आया था, हम चल के गए थे, वापस चल के आए थे। कोई कोई मेरी फ्रेंड ने की किसी मन्नत थी, हम लोग गए थे वहां से चल के विद्यानगर में कहीं पास के किसी मंदिर में, या पता नहीं कहाँ पे, पर सब फ्रेंड्स जा रहे तो मैं भी चली गई थी। तो उनकी, क्योंकि हम लोग इतने अटैच थे, इतने कनेक्टेड थे कि किसी एक बंदे का कुछ होता था तो भी हम सब साथ में वो सब चीजें करते थे। तो उस टाइम पे मुझे याद है कि वाह कितना अच्छा, यानी अभी वो टाइम याद करके भी मुझे बहुत ही अच्छी फीलिंग्स आ रही है। तो जैसे ही आप अच्छा फील करते हो तो एड्रीनलिन, आपने सॉरी, जो आपका हैप्पी हार्मोन है डोपामिन, वो रिलीज होता है आपके माइंड में। तो आप अपने आप और ज्यादा हैप्पी फीलिंग्स, अपने और ज्यादा अच्छा फील करने लगते हो जब भी आप कुछ अच्छा सोचते हो अपनी मेमोरी में से। ओके, इसके लिए आपको ये करना है। ओके, स्टेप नंबर 2। Step 2. Think about the health you are continuing to receive today and feel grateful for every organ, system, and physical sense that is currently working well in your body. Think about your arms, legs, hands, eyes, ears, liver, kidneys, brain, or heart. Choose 5 functions of your body that are well, and one by one, mentally say the magic words thank you for each one. Okay, so now in the step number 2, what you're going to do is, आपको अपने 5 ऐसे बॉडी पार्ट्स लेने हैं और 1 बाय 1 उनको थैंक बोलना है, उनके लिए थैंकफुलनेस करनी है, जैसे हमने लास्ट टाइम किया था। तो आप कोई भी ले सकते हो, आर्म्स, लेग्स, हैंड्स, आईज, ईयर, अपने पांचों 5 सेंस ऑर्गन्स ले लो, किडनीज, ब्रेन, हार्ट, लंग्स, कुछ भी ले सकते हो। तो ऐसे 5 ऑर्गन ले लो और उनको जितना हो सके इतना 1 बाय 1 आपको ग्रेटिट्यूड करना है, शुक्राना करना है ये अपने 5 बॉडी पार्ट्स के लिए। ठीक है, तो ये आपकी सेकंड नंबर का स्टेप है कि हेल्थ यू आर कंटिन्यू टू रिसीव राइट नाउ। तो मान लो कि अभी आपके घुटनों में दर्द है तो दूसरे 5 ले लो, बराबर। जैसे अगर आपको कोई और चीजों में अभी कुछ भी है, मान लो डायबिटीज है या ब्लड प्रेशर है, जो भी कोई भी डिजीज है, कोई बात नहीं, उसको छोड़ के आप अपने कोई भी 5 बॉडी पार्ट्स को ले लो, बॉडी फंक्शंस को, और उनके लिए बहुत ज्यादा शुक्राना करो। और रीजन देख के शुक्राना करो कि अगर आप अपने आर्म्स के लिए है शुक्रगुजार है तो क्यों है, बिकॉज उसकी वजह से आपको फीलिंग्स आएगी। ओके, नाउ Step लेट्स रीड 3. स्टेप नंबर 3। You are going to choose one thing you want to improve about your body for today's magical practice. But you are going to use gratitude's magical power for it in a very particular way. Think about the ideal state of what you want to improve. When you give thanks for the ideal state of anything, you have put into motion to receive back that ideal state. Very often, when a person is diagnosed with an illness or a disease of some kind, they will not only talk about it a lot, but they will research the disease, gathering information about its possible worsening systems and dreaded outcomes. In other words, they give their entire focus on the disease. However, the law of attraction says that we can't make a problem go away by focusing on it, because focusing on the problem can only make the problem worse. Instead, we should do exact opposite and focus on the ideal state for the area of our body that is unwell and give our thoughts and feeling to that. Gratitude for the ideal state of any part of body powerfully uses our thoughts and feelings together, so we magnetize it to us in one fell swoop. या सो यहाँ पे एक बात समझने की जरूरी है कि जब आप कभी भी आप अगर इफ यू क्या होता है जनरली कि अगर किसी को पता चला कि चलो मान लो पता चला कैंसर है, तो कैंसर का नाम सुनते ही इनके मन में फियर थॉट्स आ जाएंगे, वरी वाले आ जाएंगे,
और कभी कभी तो लोग इतना वर्स्ट सिचुएशन को भी इमेजिन कर लेते हैं कि अब ये होगा, कीमो के थ्रू जाना पड़ेगा, ये होगा, यानी जितना वर्स सिम्टम्स होंगे वो सब सोच लेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि सॉल्यूशन पे नहीं पर प्रॉब्लम पे पूरा फोकस जा रहा है कि ये प्रॉब्लम है, तो उसकी और रिसर्च करते, कोई कोई लोग तो खुद रिसर्च करने बैठ जाते हैं गूगल पे, ये करेंगे वो करेंगे, सिम्टम्स देखेंगे और ज्यादा डर जाएंगे और ज्यादा फियर वाले स्टेट में चले जाएंगे, क्योंकि गूगल पे कोई अच्छी चीजें तो कोई दिखाने वाला नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर डिजीज के बारे में आप देखने जाओगे तो हमेशा इतने सारे सिम्टम्स दिखाएगा। अगर आप कोई दवाई के बारे में भी देखते जाते हो तो इतने सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो वैसे आप इतने डर जाते हो, पहले से ही आप इमेजिन करने लगते हो कि क्या क्या वर्ड्स हो सकता है। अभी इसकी जगह पे आपको क्या करना है एग्जैक्टली कि आप अगर आपको अभी कुछ है, ऐसा कुछ भी बॉडी में है, तो आपको क्या करना है, अपना आइडियल स्टेट थिंक करना है फ्यूचर के लिए कि अगर ये डिजीज नहीं होगी तो आपका आइडियल स्टेट क्या होगा। जैसे मैंने बोला कल मम्मी ने जो क्वेश्चन पूछा था कि अगर तो करना है तो कैसे करें, हेल्थ के बारे में, जब हम ड्रीम्स लिख रहे थे उस टाइम पे, तो कैसे कर सकते हो आप। मान लो आपको घुटने में दर्द है, तो अगर दर्द नहीं है तो आप क्या ऐसी चीज है जो कर सकते हो, वो आइडियल स्टेट है आपका। उसको सोच के आपको बहुत ही ज्यादा अभी ग्रेटिट्यूड देना है। अगर किसी को कैंसर है तो उसका आइडियल स्टेट क्या होगा कि वो एकदम हेल्दी फील कर रहे, एनर्जेटिक फील कर रहे, हैप्पीनेस में है हमेशा, अपने परिवार के साथ सभी जगहों पे जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं, कितना भी चलना होता है दौड़ना होता है सब कर लेते हैं। तो ये इनका एक आइडियल स्टेट होगा। और जो भी अगर रिपोर्ट्स करने तो पूरे रिपोर्ट्स नॉर्मल आए, ये भी एक आइडियल स्टेट हो गया। तो आपको यहाँ पे डिजीज पे बिल्कुल ध्यान नहीं देना है, आपको अपने आइडियल स्टेट पे ध्यान देना है कि आपको क्या चाहिए, आपको अपनी हेल्थ कैसी चाहिए। अगर आपकी हेल्थ मान लो अभी अच्छी है, कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको फ्यूचर में मान लो कुछ वेट कम करना है, तो आप अपने आप को उस तरह से देख सकते हो आइडियल वेट में कि हाँ मेरा आइडियल वेट ये है और मुझे ऐसा चाहिए। तो अभी से आप उसके लिए थैंक्स दे रहे हो। ओके, सो ये 3 चीजें आज आपको करनी है। सभी को क्लियर है अभी अभी तक का ये? Yes, Alifia, it's clear. Yes. ओके ओके, सो लेट्स रीड फर्दर। ओके, सो यहाँ से यू कैन स्टार्ट Spend, रीडिंग विनीता जी। या spend 1 minute in visualizing a scene of yourself with the ideal state of your body that you want. And as you see your body in your mind, the way you want it to be grateful for it as though you have received it. So, if you want to magically restore health to your kidneys, be grateful for strong and healthy kidneys that filter and shift out all the waste products from your body. If you want to magically restore health to your blood, be grateful for pure and healthy blood that flows oxygen and nutrients to all parts of your body. If you want to magically restore health to your heart, give thanks for a strong and healthy heart that maintains the well-being of every organ in your body. यू कैन रीड। If you want to magically improve your eyesight, then give thanks for excellent vision. If you want to improve your hearing, then give thanks for perfect hearing. If you want more flexibility, then give thanks for a perfect, supple, and agile body. If you want to change your weight, first think about the ideal weight and then you want to be. Then imagine yourself at the ideal weight and give thanks for it as though you have received it now. सो यहाँ पे पूरा ही इन्होंने डिस्क्रिप्शन जैसा यहाँ पे दिया है कि अलग अलग बॉडी के पार्ट के लिए, अगर आपको कोई किडनी में कुछ प्रॉब्लम है या हार्ट में है या ब्लड सर्कुलेशन को आपको रिस्टोर करना है, अगर हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, मान लो कि किसी को कभी कभी अटैक्स आया था पास्ट में या जो भी है,
तो आपको अपने स्ट्रॉन्ग और हेल्दी हार्ट को मेंटेन करने के लिए जो भी आपको है, उसके लिए आपको आइडियल जो भी आपको चाहिए, इसके लिए आपको अभी से थैंक्स करना है, शुक्राना करना है। ओके, अगर ये एक किसी का शेयरिंग था, मुझे याद नहीं कहाँ पे, कोई ग्रुप में था शायद, कि इन्होंने 3-4 दिन में अपनी पूरी विजन को कंप्लीटली रिस्टोर कर लिया। कैन यू बिलीव इट? इट्स अमेजिंग द वे दे डिड इट, just only and only by thinking the ideal situation of the eyesight, कि अगर उनके पास स्पेक्स थे, उस स्पेक्स पहनना बंद हो गया। और बहुत ही जल्दी, क्योंकि जितना आपका ज्यादा फेथ होगा इस बातों में, इतने ही जल्दी आप मिरेकल्स कोर्स करोगे। जैसे फर्स्ट पार्ट में ही हमने पढ़ा कि मिरेकल्स आर ऑलरेडी हैपनिंग, इट्स ओनली दैट यू डोंट नो अबाउट इट। अगर आप कुछ और सोच के बैठे हो यहाँ पे। तो ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स आए हैं हेल्थ के बारे में, तो जबरदस्त एग्जाम्पल्स है कि किसी का ये ठीक हो गया, किसी का हियरिंग ठीक हो गया, किसी की कंप्लीटली आईसाइट रिस्टोर हो गई, किसी को आइडियल वेट मिल गया अपना। कितने सारे मिरेकल्स। जो मिरेकल मैन का भी जो वो एक एग्जाम्पल था कि जैसे उन्होंने 6 मंथ्स में पूरी कितनी सारी 300 जितनी हड्डियां टूट चुकी थी पूरे बॉडी में। डॉक्टर्स ने तो बिल्कुल मना ही कर दिया था। ऐसी ऐसी हालत में भी उन्होंने अपना स्ट्रॉन्ग फेथ रखा और एक आइडियल स्टेट उन्होंने इमेजिन किया। आइडियल स्टेट उनका क्या था कि क्रिसमस में वो चल रहे हैं, चल के वो जा रहे हैं हॉस्पिटल में से क्रिसमस के दिन पे। तो आप भी ऐसा कुछ पकड़ लो, जो भी आप अभी इमेजिन कर सकते हो, जो भी आपकी अभी की सिचुएशन है। मान लो आपको वेट किसी जगह पे कम करना है, तो अपना जैसे विजन, अगर विजन बोर्ड बना रहे हो तो वहां पे अपनी ऐसी कोई, या तो अपने खुद की तस्वीर लगा सकते हो पास्ट में जब आप बहुत ज्यादा पतले थे, वो वाली एक लगा दो अपने उसके ऊपर, विजन बोर्ड के ऊपर। या तो फिर किसी और का भी बॉडी लेके आप अपने पता नहीं, सब लोग करते हैं वो ग्राफिक्स डिजाइनिंग में, कि पिक्चर में अपना फोटो रख दो। तो वैसा करके वो भी आप विजन बोर्ड में लगा सकते हो। बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है अपने आइडियल बीइंग के लिए। अगर कई कई लोग को मैंने देखा है कि जैसे स्पोर्ट्स कुछ कर रहे हैं, ऐसा पिक्चर लगा दिया है। अगर और मैराथन में दौड़ रहे हैं, हाँ, ऐसा भी लोगों ने किया है कि मैराथन दौड़ रहे हैं, उसमें जीत गए हैं। तो मैराथन में आप कब दौड़ पाओगे? जब आपकी परफेक्ट हेल्थ होगी। तो ये सारे एग्जाम्पल्स है, आप कैसे विजुअलाइज कर सकते हो अपनी आइडियल हेल्थ के लिए। तो ये आज आपको करना है। ओके, सो नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज। हिपोक्रेट्स, फादर ऑफ वेस्टर्न मेडिसिन। तो हिपोक्रेट्स ने बहुत सारी चीजें ढूंढी है। इन्होंने ही कितनी सारे रिवॉल्यूशन किए हैं मेडिसिन के। आज जो भी मेडिसिन में जितना भी रिवॉल्यूशन है, इन्होंने लाया था हिपोक्रेट्स ने। तो इन्होंने क्या बोला है कि नेचुरल फोर्सेस विद इन अस आर द ट्रू हीलर्स ऑफ डिजीज। तो अगर हमारे अंदर के जो नेचुरल फोर्सेस है, वही हमको हील करते हैं। मान लो आपने बाहर से तो दवाई ले ली जो भी है, पर अगर आप स्ट्रोंग हो अंदर से कि नहीं, मुझे तो ये अपने को आपको हील करना ही है, तो आप आराम से हील कर पाओगे अपने आप को। इट डजेंट मैटर व्हाट यू आर टेकिंग, व्हाट मेडिसिन यू आर टेकिंग और यू आर नॉट टेकिंग। ये मेरे साथ तो बहुत बार होता है। मैं अपने आप को, ये इसके मामले में तो मैं बहुत पक्की हूँ। बहुत टाइम से मैं अपने हेल्थ के मामले में कभी दवाइयों के बिना ही मैं अपने आप को ठीक करती हूँ हमेशा, पहले से ही। क्योंकि मैं ऑलरेडी लाइक फार्मेसी में हूँ, तो मुझे दवाइयों का वैसे भी ऐसा ही है कि नहीं, ये दवाई मुझे नहीं खानी है, मतलब जितने इसके मैंने साइड इफेक्ट्स पड़े हुए होते हैं। तो ये मेरा तो बहुत ही बड़ा फेथ और बिलीफ है कि मैं अपनी हेल्थ को आराम से रिस्टोर कर सकती हूँ, जब चाहूँ तब कर सकती हूँ। अपने आप को मैं हील कर सकती हूँ। तो ये आप भी एक अपनी बिलीफ बना लीजिए। धीरे 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 जाके आपको किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी या कुछ नहीं। यहाँ पे जी अभी एक और मैं चीज शेयर कर सकती हूँ
कि यूएस में आने के बाद सब लोग बोलते हैं कि लाइक ओ माय गॉड, हाउ कैन यू सर्वाइव विदाउट अ मेडिकल इंश्योरेंस, क्योंकि यहाँ पे बहुत बहुत बड़े बड़े बिल्स आते हैं, स्पेशली व्हेन यू आर हियर विथ किड्स। मैं आपको एक बात बोलती हूँ, बहुत अजीब लगेगा, पर हम लोग यहाँ पे 8 साल से है अभी। ओके 8 साल, ये नोवा 9th स्टार्टेड ऑलरेडी, तो 8 साल से है। ऑलमोस्ट 5 years, 5 to 6 years we didn't have any medical insurance, और हम सरवाइव कर रहे थे यहाँ पे। अभी दो लाइक लास्ट ईयर ही मेरी कंपनी में से मैंने मेडिकल इंश्योरेंस लिया, वो भी कुछ और वजह से, और यू नो नॉट बिकॉज ऑफ लाइक कुछ हमें ये हेल्थ का ये है वो है प्रॉब्लम है, पर बिकॉज ऑफ सम अदर रीजन। बाकी अभी भी वो भी ऐसा है कि एकदम बहुत ही अच्छा वाला मतलब इंश्योरेंस है, जिसमें बहुत पैसे कम भरने पड़ते हैं मंथली। अदरवाइज जैसे मेरी जॉब के ऊपर अगर किसी को भी पता चलता था कि मेरे पास इंश्योरेंस नहीं है, तो वो लोग तो मुझे इतना डांटते थे कि हाउ कैन यू स्टे हियर इन यूएस विदाउट अ मेडिकल इंश्योरेंस। और मैं उनको आराम से, मैं चुपचाप रहती थी, मैं उनको कभी ऐसे नहीं बोलती थी। मैं अंदर अंदर बोलती थी कि हाँ मुझे पता है, मुझे अपने आप पे विश्वास है और ऊपर वाले पे भी विश्वास है कि अगर मैं अपनी हेल्थ का अच्छा ध्यान रख रही हूँ, अगर मुझे फेथ है, तो यस वी कैन सर्वाइव विदाउट मेडिकल इंश्योरेंस। पर कभी कभी मतलब ठीक है, अभी है कि नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है कि इंश्योरेंस है कि नहीं है, पर आपको अंदर से विश्वास है कि आप अपने आप को हेल्दी रख सकते हो, अपने अपनी फूड चॉइसेस ऐसे बनाते हो, अपना एक्सरसाइज स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत अच्छा रखते हो, और अपनी हेल्थ के लिए बहुत ग्रेटफुल होते हो, तो आपको कोई चीज की जरूरत नहीं है। ओके सो विनीता जी, यू कैन रीड। Are you on mute? You, Okay. you can follow the magic and miracles in health practice every day if you need to. And you can do it multiple times in a day if you really want to accelerate the magical restoration of full health or the improvement of an aspect of your body. But it is vital that whenever you have a negative thought or feeling about current state of your body or health, that you replace it immediately by visualizing Utilizing. yourself with the ideal state you want and by being truly grateful as though you have already received it. The most effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. Okay, so effective way to guarantee health other than taking good care of yourself physically is to continue to be grateful for your health. तो अगर आप अपने हेल्थ के लिए ग्रेटफुल हो, अपने अच्छे से ध्यान रखते हो, अपनी बॉडी की केयर करते हो, उसको जो भी नरिशमेंट चाहिए, जो भी न्यूट्रिशन चाहिए आप देते हो, तो आपकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहेगी, और यू विल कंटिन्यू टू रिसीव अ गुड हेल्थ। ओके सो यहाँ पे एक और मैं चीज आपके साथ शेयर कर सकती हूँ कि लाइक पता नहीं मैंने आगे शेयर किया था या नहीं, पर मैं वापस शेयर करूंगी, क्योंकि कोई नए लोग होंगे तो उनको भी फायदा हो सकता है मेरी शेयरिंग से। तो जैसे अभी लास्ट नवंबर 2020 में हमारे घर में फायर हुआ था। उस टाइम पे मेरे हस्बैंड की पूरा फेस जल गया था, और पूरा राइट हैंड ऑलमोस्ट, और उनको कहीं कहीं जगह पे 2nd डिग्री बर्न्स थे, कहीं कहीं जगह पे 3rd डिग्री बर्न्स थे। उस टाइम पे हम दोनों की इतना मतलब फेथ था उस टाइम पे। हम कोविड का टाइम था, एक ही दिन वो हॉस्पिटल में रहे थे, दूसरे ही दिन हम लोग घर पे आ गए थे। हम घर पे पूरा ड्रेसिंग करते थे, 2 घंटे ड्रेसिंग को लगते थे, पूरी इतनी तरह लाइक 3-3 लेयर स्किन के निकल चुके थे। और हम दोनों का फेथ इतना वो था, इतना पावरफुल था उस टाइम पे। और उस टाइम पे मैंने ये लिख भी दिया था ड्रीम लिस्ट में,
और मैं इमेजिन भी करती थी कि मेरे हस्बैंड ड्राइव कर रहे हैं 15 लाइक विद इन अ मंथ। और सेम ऐसा हुआ था। एक दिन ऐसा आया था कि फार्मर्स मार्केट जाना था, और उन्होंने, जब मैं जॉब पे उस टाइम पे थी, और वो ड्राइव करके फार्मर्स मार्केट गए थे उस दिन। तो मैं क्यों ये इमेजिन करती थी, क्योंकि मुझे पता है कि अगर उनका हाथ हील हुआ होगा तो ही तो वो जा पाएंगे ना ड्राइव करके। हाथ के ऊपर ही सबसे ज्यादा बर्न्स थे, फेस के ऊपर भी थे, पर फेस के ऊपर तो भी 2nd डिग्री बर्न्स थे, हाथ के ऊपर 3rd डिग्री बर्न्स था। पूरा राइट हैंड यहाँ तक पूरा जल गया था। आप मेरे ये घर के लोगों को भी पूछ सकते हो कितनी हम लोगों ने उस टाइम पे हमारी हिम्मत हमने रखी थी। इंस्टेड ऑफ गेटिंग इनटू फियर मोड, और इंस्टेड ऑफ गेटिंग इन एंजाइटी वरी वो मोड, मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही हम इतने कॉन्फिडेंट थे उस टाइम पे। हाँ, हमने बॉडी को पूरी तरह से हील करने के लिए जूसेस वगैरह इस्तेमाल किया। पूरा दिन में उनको जूस देती थी। तुलसी के पत्ते हैं वो मेरे घर में थे, एलोवेरा हम यूज करते थे। ये सारी जो भी नेचर की चीजें हैं जिसमें आपका फेथ हो। इसमें भी क्या होता है, एक बात ये भी समझ लेना, मान लो आपको कुछ कोल्ड और कफ हुआ है, अगर आपका फेथ है कि हाँ मुझे तुलसी का काढ़ा पीने से ठीक हो जाएगा, तो इसमें तुलसी का काढ़ा तो अच्छा, चलो वो तो है ही, एक अच्छी बात है कि तुलसी है। पर अगर आप तुलसी का काढ़ा नहीं भी पियोगे, आपको अगर ये भी फेथ है कि हाँ गर्म पानी से मैं ठीक हो जाऊंगी, अगर ये आपका फेथ है तो आप गर्म पानी से भी ठीक हो जाओगे। दैट्स हाउ योर माइंड वर्क्स। इतना जबरदस्त होता है ये। उस टाइम पे मैं ये जस्ट ग्रेटिट्यूड के उसमें आई ही थी। तो मैं हमेशा जब भी उनको कुछ देती थी, जूस है, पानी है, जो भी देती थी पूरे दिन में, उसमें बहुत सारा ग्रेटिट्यूड डाल के देती थी मैं उनको पूरे दिन में। आप मेरे फैमिली मेंबर्स को भी पूछ सकते हैं, जब वो हमारे साथ बात करते थे, वो रोते थे, हम उनको यहाँ से बोलते थे कि अरे आप चिंता मत करो, हमने उनको बताया भी नहीं था एक्चुअली 1 हफ्ते तक। तो 1 हफ्ते के बाद हमने उनको बताया कि हाँ ऐसा हुआ है, और कुछ नहीं, आप डरो मत, वहां पे सब ठीक हो जाएगा। और यू कैन नॉट बिलीव, मेरे हस्बैंड ने उस टाइम पे पेन किलर्स तक नहीं लिए हैं। विदाउट पेन किलर्स ही सर्वाइव्ड दैट मच पेन। सो पूरा सबकॉन्शियस माइंड है। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बोलते हो कि आई डोंट, आई मीन आई फील गुड, आई फील गुड, आई फील ओके, तो जो पेन भी होता है, चलो ये मैंने खुद ने ये एक्सपीरियंस नहीं किया है, पर मेरे हस्बैंड जब भी कभी बात करते तो वो बोलते हैं कि वो ऐसा अपने आप को बोलते थे कि कुछ नहीं, पेन इज गुड फॉर मी। ये अपने आप से वो बोलते थे। उनको जो पेन किलर्स दी थी, एक बार उन्होंने ली, उनको अच्छा नहीं फील हुआ, क्योंकि वो जो नार्कोटिक्स दी थी ऑक्सीटोसिन करके, तो नार्कोटिक्स के साथ उनको अच्छा फील नहीं हुआ। चक्कर आ रहे थे, वो क्लियरली थिंक नहीं कर पा रहे थे। उसी दिन उन्होंने वो मेडिसिन को बाजू में रख दिया। इवन क्रोसिन या आइबुप्रोफन भी वो नहीं ले पाए थे, क्योंकि उनको एक बार ली थी तो डाइजेस्टिव प्रॉब्लम हुआ था, तो उनको वो भी नहीं लेना था। उन्होंने कोई मेडिसिन नहीं ली, कुछ नहीं लिया। अपने आप विद इन अ मंथ डॉक्टर भी हैरान थे। डॉक्टर्स भी, उन्होंने भी बोला कि वाओ दिस इज रियली मिरेकुलस द वे ही हील्ड हिमसेल्फ। तो ये एक एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ कि आप सबको भी इससे फायदा हो सकता है, कि आप जब अपनी हेल्थ के बारे में या सो ये आमिना, यस, आमिना यहाँ पे अपने अपना भी बोल रही है कि कोल्ड एंड कफ में उनको कैसे ये ऑलवेज हेल्प करता है फेथ। सो ये जैसे हेल्थ में आपको फेथ है, इसी तरह से आप मनी मामले में, कोई भी मामलों में आपको अगर फेथ है तो कुछ कुछ नहीं होता, सब कुछ ठीक हो जाता है। सभी चीज आपके फेथ के ऊपर है। ओके, सो मैजिकल प्रैक्टिस नंबर 16, लेट्स रीड। Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful as for that blessings as you can. Second, recollect 3 separate times throughout your life
when you felt on top of the world and gave sincere thanks for those times. Third, think about 5 functions of your body that are well, and one by one give thanks for each one. Fourth, choose one thing about your body or health you want to improve and spend 1 minute visualizing yourself with the ideal state of your body or health. Then give thanks for the ideal state. Fifth, just before you go to sleep tonight, hold your magic rock in one hand and say the magical words thank you for the best thing that happened during the day. ओके सो सबको क्लियर है आज की प्रैक्टिस? Yes. Okay, so let's Yes, move yes. on to our power book. Let me scroll down. Okay, so I think we read until here yesterday, right? Hatim, do you remember? Yes, Olivia. Okay. So Binita ji, you can start reading from here. You don't make a connection. You don't make a connection when you complain to a store person and then a few hours later you receive a call from your neighbor complaining that your dog is barking. You don't make a connection when you meet a friend or lunch and talk negatively about a mutual friend and you arrive back at work to discover big problems have developed with your major client. You don't make a connection when you don't make a connection when your dinner conversation is about Conversation. conversation is about something negative in the news and that night you can't sleep because of an upset stomach. You तो don't यहाँ make पे a connection. इतना अच्छे से वो बोल रही है कि कभी कभी आप किसी और जगह पे कंप्लेन करते हो और वापस आपको वापस कहीं ना कहीं पे उसी दिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप आज आपने कुछ नेगेटिव थॉट किया, आज ही आपको वापस किसी न किसी और चीज में वो नेगेटिविटी वापस मिल जाएगी। कभी कभी ऐसा होता है कि आज अपने नेगेटिव थॉट किया वो आपको कहीं और फ्यूचर में भी वापस आके मिलेगी। तो ये कनेक्शन आप ये जो अभी यहाँ पे आप समझा रहे हैं रोंडा बर्न कि डोंट मेक अ कनेक्शन व्हेन यू कंप्लेन टू अ स्टोर पर्सन। आप कंप्लेन करते हो स्टोर पर्सन के लिए और आपका नेबर आके डॉग बार्किंग के लिए आपको कंप्लेन कर रहा है। तो ये हमेशा समझ लिए वो जो भी आप देते हो वो ही आप रिसीव करते हो अपनी लाइफ में। वट एवर यू गिव, अगर आप किसी चीज के लिए अभी कंप्लेन कर रहे हो तो हमेशा पक्का समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में वो आके आपको वापस मिलेगी, नो मैटर व्हाट। तो ये एक जबरदस्त चीज होती है, ये हमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन को हमें समझना बहुत जरूरी है। डीप में ये पावर बुक हमें समझाती है कि कैसे ये काम करता है। ओके, लेट्स रीड फर्दर। You don't make a connection when you stop to help someone who has dropped something in the street and 10 minutes later you get a parking space right outside the supermarket door. You don't make a connection when you help your child with their homework and the next day you receive news that your tax refunds will be bigger than your thought. You don't make a connection when you do a favor for a friend and that same week your boss gives you 2 complimentary tickets to a sports game. In every circumstances and moments of your life, you are receiving what you have given, whether you make the connection or not. Nothing comes from without, all things come from within. Nerily Goddard, New Thought Author, 1905 to 1970. या सो नेविल गोडार्ड ने क्या बोला कि नथिंग कम्स फ्रॉम विदाउट, बाहर से कुछ भी नहीं है, एवरीथिंग्स कम फ्रॉम विद इन। आप जैसा करते हो, आप जैसा सोचते हो, अगर आपने किसी की मदद की, किसी को हेल्प कर दी, अपने बच्चे के साथ हैप्पीली उसको होमवर्क करवाया बिना एनॉय हुए या बिना इरिटेट हुए,
बहुत ही हैप्पीली आपने कुछ काम किया, अपनी फ्रेंड को मदद की, कोई ऐसी आशा रख के नहीं कि वो आपको वापस मदद करेगी, बस अपने अच्छे मन से उसको मदद कर दी, तो कहीं ना कहीं पे आपको ये अच्छाइयाँ भी वापस आके मिलती है। ये आपने खुद ने भी अपनी लाइफ में नोट किया होगा कि कैसे कैसे तरह से कभी कभी हम बोलते हैं कि हाँ, अ, ये हमारा ही कुछ कहा, यानी किया धरा होगा, जो है हमारे हाथ में ये इतनी बड़ी बला टल गई, ऐसा भी बोलते हैं लोग। तो ये कुछ नहीं, आपने कोई भी अच्छे कर्म किए वो आपस से आपके ही पास घूम के आएंगे। जैसे आपने किसी की कंप्लेंट की, वो जैसे आपको पास वापस घूम के आता है, सेम वे में अगर आपने किसी को हेल्प कर दी, कुछ अच्छे काम कर दिए दो चार, तो वो भी आपको वापस आपके पास आएंगे। या मैं ना, आपको कुछ क्वेश्चन है? Yeah, it's a sharing. Shall I do right now or later on regarding this? What you are saying, no, that if we do या something, यू कैन शेयर, it दैट्स comes. फाइन। अभी कल ही की बात है मेरी, शी इज अ कस्टमर कम फ्रेंड ऑफ माइन। तो उसको कुछ ऑर्डर देना था, उसके लिए उसने कॉल किया था। कभी वैसे कन्वर्जेशन होती नहीं है ऑर्डर के अलावा, लेकिन कल समहाउ कोई दूसरी कन्वर्जेशन शुरू हो गई थी। शी इज अ योगा टीचर बाय प्रोफेशन। तो मैंने उसको बताया कि आई एम डूइंग ऑल दिस प्रैक्टिस। वो काफी खुश हुई। देन शी वाज सपोज वो आज यहाँ पे आने वाली है, कुछ प्लांटेशन प्रोग्राम है यहाँ पे हमारी सोसाइटी में, उसके लिए। तो वो शी जस्ट सेड कि मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है, मुझे प्लांट्स करने हैं, उसने ऐसा बोला। तो मैंने उसको बोला कि मेरे पास बहुत सारे प्लांट्स है, लाइक आई हैव मनी प्लांट्स इन अबेंडेंस, एलोवेरा अबेंडेंट है, फिर ये स्पाइडर प्लांट्स अबेंडेंट है। आई विल गिव यू, एनीवेज मैं डोनेट करती रहती हूँ हर 3-4 महीने में। प्लांट्स मेरे वहाँ जितने बढ़ जाते हैं मैं ऐसे ही डोनेट कर देती हूँ ग्रुप पे डाल के, जिसको भी चाहिए होते हैं। तो आई सेड आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू करके। तो वो इतनी ज्यादा खुश हो गई। सेकेंड ही कुछ ही मिनट पे हम लोग ये जो कन्वर्जेशन कर रहे थे ना, तो उसने लाइक सीक्रेट बुक के बारे में बात की कि उसके किसी मैं जो बातें कर रही थी तो उसने बोला कि हाँ ये शायद मैंने कुछ पढ़ा है, तो जो बोल रही है ना, ये सीक्रेट बुक करके कुछ है मेरे पास, उसमें है करके। तो लाइक आई वाज सो एक्साइटेड। शी इज नॉट रीडिंग इट एनीमोर, लाइक थोड़ा बहुत कभी उसको गिफ्ट में मिला था तो थोड़ा पढ़ लिया था, लेकिन है उसके पास कहीं पे पड़ी हुई है घर पे। तो आई गॉट सो एक्साइटेड, आई सेड कि कैन यू जस्ट गिव मी फॉर फ्यू डेज करके। लाइक दिस वाज माय ड्रीम टू हैव अ मैजिक बुक। लाइक मुझे ऐसा था कि बाई तो मैं वैसे कर सकती हूँ, ऐसा कुछ नहीं थी, लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा था कि काश मुझे कहीं से, जैसे आपने बोला था ना अलिफिया, कि कहीं से आपको मिल गई करके, हम्म। वैसे मुझे भी दिमाग में उसी दिन हो लॉ गया ऑफ था कि काश अट्रैक्शन मुझे भी टाइप ऐसे ही है। मिल जाए मैजिकली कहीं से। तो इतना मैजिकली मैं इतनी खुश हो गई कि काफी अभी 1 हफ्ते से मैं ऐसे ही मैनिफेस्ट कर रही हूँ कि मुझे कहीं से मिल रही है मैजिक बुक। एंड शी सेड यस आई वुड बी हैप्पी टू गिव यू करके, क्योंकि वो इतना कुछ पढ़ नहीं रही है। मैंने बोला इट वुड बी योर ओनली, मैं पढ़ूंगी कभी, whenever you want you can take it back from me. So today she is going to get a magic book for me. So वाओ। it's like magic come true. उसका हाउ भी ड्रीम नाइस। पूरा हो गया, लाइक उसको प्लान्स चाहिए थे और लाइक मेरा भी उसके साथ साथ। तो अब इट्स तो मैजिक ओनली कि कभी ऐसे ऐसे कभी कस्टमर्स है तो ऐसे पर्सनल लेवल पे कभी बात नहीं करती हूँ ज्यादा, और ये सारी बातें निकल गई और ऐसा सब हो गया। तो इट्स रियली साउंड्स वेरी मैजिकल फॉर मी। या इन इट्स कैसा कैसे कोइंसिडेंस होते हैं अपनी लाइफ में कि कोई कोई चीजें एकदम कोइंसिडेंटली होता है, कि कभी ऐसा होता नहीं और इस बार ही हो जाता है। जैसे आप बोल रहे हो कि कभी आपकी बातें नहीं हुई और इस बार आपने इतनी ज्यादा बातें की और बातों बातों में आपको ये बुक भी मिल गई, उनको उनके प्लान्स मिल गए। आई मीन हाउ हाउ नाइस इट इज, हाउ मैजिकल एंड वंडरफुल इट इज। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग आमिना, थैंक यू सो मच। ओके, सो टिपिंग पॉइंट से हम कल रीड करेंगे। आज तक इतना ही। कितने पेजेस? पावर बुक के लाइक 262 पेजेस है, जिसमें से हमने ऑलरेडी 60 पेजेस, 67 जितने कर लिए। अगर पावर बुक हमारी मैजिक बुक के साथ नहीं भी कंप्लीट होगी तो हम लोग ये कंटिन्यू करेंगे। ओके, सो लेट्स रीड अवर हार्ट। सॉरी, एक्चुअली सुनाई नहीं दिया। विनीता जी, आप बोल रहे थे?
पूरा वो मिस ही हो गया, मतलब I said na it's going to be I think she has lost the connection. She's locked out. yeah, I think so too. ओके, एक्चुअली मेरी ये बुक मुझे वापस खोलनी पड़ी, तो जरा हाथ तो लेट मी सी इट माय सेल्फ. ओके, ओके. सो आज का हार्ट थॉट भी बहुत ही अच्छा है. आई एम अ मैग्नेट फॉर मिरेकल्स. सो लेट मी शेयर. तो जैसे यहाँ पे हमारा हेल्थ का चैप्टर चल रहा है और यहाँ पे भी ये हार्ट थॉट भी सेम उसका है. तो disease breeds in unforgiveness. Forgiveness has nothing to do with condoning behavior. The very person you find it hardest to forgive is often the one you need to let go of the most. I have found that forgiving and releasing resentment will help to dissolve even cancer. तो जैसे मैंने आपको कल भी बताया था कि जैसे अगर आप किसी को फॉरगिव करते हो, इतने सालों का अगर रिसेंटमेंट को रिलीज करते हो, तो इवन वो कोई भी बीमारी को डिसॉल्व कर सकता है. यहाँ पे इन्होंने बोला है कि कैंसर को भी इवन वो डिसॉल्व कर सकता है. तो ये फॉरगिवनेस बहुत ज्यादा जरूरी है. हमेशा ही मैं आपको बताती हूँ और बार बार बताती हूँ, क्योंकि जब तक आप और कहा यहाँ पे क्या होगा कि जो जो पर्सन को आपको सबसे ज्यादा हार्ड लगता है फॉरगिव करने में, वही आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा उसको फॉरगिव करना. कहीं ना कहीं पे इसकी वजह से आपके बॉडी के अंदर या आपके माइंड के अंदर ऐसी कोई नेगेटिविटी होगी जो अगर आप जब फॉरगिव उनको करके रिलीज करते हो तो बहुत ही बड़ा चेंज आएगा अपने आपकी लाइफ में. तो ये एक बात आपको समझने का बहुत जरूरी है. So I'm a magnet for miracles. This is the heart for today, heart thought for today. So unknown and unexpected goods is coming my way this day. I'm far more than rules and regulations, restrictions and limitations. I change my consciousness and miracles occur. Within every medical establishment, there is a growing number of practitioners who are enlightened and on a spiritual pathway. I now attract these people to me wherever I am. My mental atmosphere of love and acceptance is a magnet for small miracles every moment of the day. Where I am, there is a healing atmosphere and it blesses and brings peace to all. And so it is. तो यहाँ पे लुइस से क्या बोल रहे हैं कि मैं अपना आई चेंज माई कॉन्शियसनेस एंड मिरेकल्स अकर. जब आप अपना कॉन्शियसनेस चेंज करते हो तो मिरेकल्स अपने आप होने लगते हैं. और जैसे आप अगर ऐसा बिलीव करते हो कि हाँ जिसको भी मैं मिलती हूँ, तो जैसे अगर डॉक्टर के पास जाना भी पड़ा, आपको मान लो कि चलो डॉक्टर के पास जाना पड़ा, तो आपका बिलीफ ये है कि जो जिससे भी मैं मिलती हूँ वो स्पिरिचुअल पाथवे पे है, एनलाइटेंड डॉक्टर्स है, तो आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करोगे, ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करोगे. और लव एंड एक्सेप्टेंस का जो आपका जो फीलिंग होंगे, आपके खुद के फीलिंग, वो ऐसे ही मिरेकल्स आपकी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे. तो एंड देयर इज अ हीलिंग एटमॉस्फेयर एंड ब्रिंग इट ब्लेसेस एंड ब्रिंग पीस टू ऑल एंड सो इट इज. तो ये कितना अच्छा ये थॉट है आज का. जैसे हमने अभी हेल्थ के रिलेटेड ये पूरा मैजिक बुक का चैप्टर किया और उसके साथ कोइंसिडेंटली ये वाला आया आज के दिन में, आई एम ए मैग्नेट फॉर मिरेकल्स.
तो आप ये समझ लीजिए मिरेकल्स जरूर होते हैं जब आप स्पिरिचुअल पाथवे पे आ जाते हो, जब आपका फेथ बढ़ जाता है, जब आपकी नेगेटिविटी कम हो जाती है। और नेगेटिविटी आती है, प्रॉब्लम्स आते हैं, पर आप उसमें भी हमेशा अपने फेथ को बरकरार रखते हो, अपने जो लाइफ की प्रोसेस है उसको ट्रस्ट करते हो, अपने आप वो चीजें आती है, जाती है, हो जाता है, और आपकी जो लाइफ है वो तो ब्लेस्ड ही रहने वाली है। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड let's do our meditation. So everybody wants to do meditation, right? Just want to confirm. I'm assuming all are. Okay. Yes, I will do. Okay. So yeah, let's do our meditation. I'll put the music on. Hi, I'm Scarlett De La Torre, and I am a sound. Can you all hear the music? Okay. Not so clear. Sorry? It's low. Sound is low. Not so clear. Yes, now it is. Okay. Okay, so okay, Benita ji, no problem. Thank you so much for joining. Thank you. Okay, so let's sit in a very straight posture. Our spine should be straight. Our hands facing the heavens above. Eyes closed. Let's do a deep breathing. Let's inhale gratitude for our body. Hold. Release. Release all the complaints and negativity that we do about our body. Again, inhale. Exhale. Relax your mind and your body by deep breathing. Once again, let's inhale. Hold. Exhale. Try to relax all parts of your body, all the muscles in your body. Let's start with your toes. Let's get our attention on the toes and relax it completely.
Let's now move on to our feet. Do a little movement and then relax. Relax your feet completely. Now move on to your ankles, all your calf muscles. Relax them completely. Feel the relaxation in your body. Now let's move on to the knees. Relax our knees. Like the inside bones and everything are completely relaxed. You are feeling so much peace within. Now let's move on to the thighs, thigh muscles. All the bones, skin, everything is completely relaxed. Now let's move on to the lower part of your body. Let's relax all the muscles in your hips, in your excretory areas, in your digestive areas, pelvic area. Let's relax them completely and fully. Now let's move on to our upper part of the body, our spinal cord, lungs area, chest area. All the muscles in our chest are completely relaxed. Now let's get our focus on our heart, and our heartbeats are going down and heart is completely relaxed. Let's move on to our hands, shoulders, upper arm, lower arm. All the muscles, all the bones, everything are completely and fully relaxed. Let's move on to the neck area, throat. All the blood vessels, everything is fully relaxed. Let's move on to the face. All the facial muscles are fully relaxed. Forehead, inside the mouth, your jaws and everything are completely relaxed. Your tongue is completely relaxed. The whole head area is completely relaxed. Now let's affirm. I am calm and peaceful. I am made in the image of God. I am love, I am peace, I am harmony. I am abundance. I love myself and I appreciate
my body. I love and accept myself exactly the way I am. I love my body exactly the way I am, the way it is. I truly embrace all of the positive moments in the present. And I'm in complete peace with my past. I trust the process of life and I'm fully blessed. I'm divinely guided. Divine right action is always taking place in my life. I always listen to my intuition and I'm guided by my inner wisdom. Divine right order is working in my life. And I'm fully healthy, fully vibrant, and very energetic. I'm amazingly blessed to have such a fully healthy body. Okay, now let's rub our palms and start blessing all our body parts with this energy of meditation. Let's bless our conscious, subconscious mind, forehead, eyes. Let's thank all of our body parts. Our cheeks, nose, chin, mouth, neck area, throat, shoulders, hands, fingers, palm, fingernails, the whole spine, upper and lower back, hips, our chest area, heart, lungs, the whole digestive system, our solar plexus, excretory organs, thighs, knees, calves, feet, sole of the feet, toenails, toes, ankle and heel. Thank you, God, for this amazing, marvelous body. Thank you so much for my heart. It's always working perfectly and harmoniously. Thank you for all the trillions and trillions of cells in my body and all the organs, all my hormones, enzymes, the fluid that is running in my body, my blood vessels. Thank you to my lymph nodes for purifying and clearing all the good toxicity from my body and providing me with amazing immune system. Thank you for my skin and all the protection layers. Thank you. Okay. All right. So everybody, thank you so much for joining in Thank you, today. Alifia. Thanks. Good morning to you. Yeah. Good morning to you. Actually, it's my night. Okay. Yeah, it's Good about night. 10:48. Thank Yeah. you. Oh, Thank it's you. 10:40. Okay. Hmm. Thank you, Alithya. Thank Okay. you. Enjoy your night and a very good Sunday tomorrow for you.
Thank you so Thank much. you. You too. Yeah, You thank too you very have a Thank much. you. magical day, magical Okay, Sunday. thank you. Thank you. Hope you're practicing well. I'm Yes, pretty yes. sure. Yes. Well, yes, yes. Okay. 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 Then thank Yeah. you, everyone. Bye. Thank Bye. Thank you. Bye. Have a great day ahead. Thank Oh, you. it's night for you. So, Okay. Thank you. one more thing happened yesterday. Mm-hmm. It's a small thing, but it's very, very meaningful for me. તમે જે બધા ડ્રીમ્સ લખવાના હમણાં જે બી પ્રેક્ટિસ આવી ને મેં હમણાં સુધી નહોતી લખી મારા માઇન્ડમાં હતી પણ મેં લખી નહોતી કેમ કે મને આમ હતું કે મેં ફર્સ્ટ આઈ વિલ બાય અ વેરી લવલી બુક ફોર મી જેનાથી મને એ બુકને જોઈને જ એટલી બધી અમેઝિંગ ફિલિંગ્સ આવી જાય એકદમ ફાઇન મને બુક જોઈતી હતી એક્સક્લુઝિવલી લુકિંગ બુક ને એવી રીતે જોઈતી હતી then only I thought I will start writing my dreams. And yesterday I got it accidentally. મને છે ને actually જે યુનિકોર્ન કલર્સ છે ને I love that colors. Like I do trading no online. તેમાં બી કોઈ બી ક્લોથ્સ કિડ્સ ના હોય કે બિગ ના હોય ને તો મેં એકદમ ફેસિનેટ થઈ જતી હતી યુનિકોર્ન કલર્સ ને જોઈને. And I never knew that I always wanted for my own self. તો ગઈકાલે બુક લઈને આવી તે જસ્ટ એક જ બુક પર મારી નજર પડી ને I thought of buying it though it was a bit out of budget for me. And but I just took it કે મારી નજર એના પર જ અટકી ગઈ ઘરે લઈને આવી I didn't notice so much of colors and all just આમ Wow. ગમી ને instantly ઉઠાવીને હું ઘરે લઈ આવી ઘરે આવીને આજે સવારમાં મેં લખવાનું ટ્રાય કર્યું there આમ રિયલાઇઝ થયું કે this is a unicorn color in that. So Wow. this always happens with me કે મારું ડ્રીમ હોય છે પૂરું થઈ જાય છે and afterwards I realize કે અચ્છા this I wanted this something like this only I wanted. Mm-hmm. So that feeling gives all the more no excitement કે at the Yes. time of buying નહીં હોતું but after જ્યારે લઈને આવું છું પછી વધારે excitement હોય છે. Wow. Amazing. And then I wrote my dreams today and I will still try it. Mm-hmm. Okay, perfect. I don't think and write about dreams. What I believe is whenever it comes from heart something at that time I would write my dreams. Yeah, Not like definitely. You can do that. thinking and I have to think hard to what I want and I write. I don't want that. So that book I have specially kept for that only, that whatever instantly comes in my heart, no, I will write in it. Any wish list or any dream. That's a very good, yeah, and that is also the thing. But like sometimes when you also start writing, like when you sit down for writing, that also, then also sometimes, you know, one after the other things will come from your subconscious mind. So Yes. I mean, both ways, whatever you feel comfortable, you should be always feeling comfortable whatever you do. So yeah. So okay then, bye, have a good Yeah. one. Bye. Have a lovely day, Bye. magical day. Thank you. Sweet dreams, sweet night. Bye. Thank you.